Good morning, friends. You are most welcome to Think Eyes channel. Today we are discussing the Indian anthropology, and our first topic is growth of Indian anthropology. भारतीय मानव विज्ञान का विकास and a discussion on the rise and growth of anthropology in India is not without considerable difference of opinion. Thankfully, the areas of dispute are mostly confined to the origin and not to the development and growth of the discipline as such. भारत में मानव विज्ञान की उत्पत्ति और विकास संबंधी विचार विमर्श में मतांतरों का होना स्वाभाविक है। अच्छी बात यह है कि इस शैक्षिक विषय में विवाद का क्षेत्र विकास और प्रगति के बजाय केवल उसकी उत्पत्ति तक ही सीमित है। विद्यार्थी 1972 to 1980 has been advocating that the beginning of the anthropological investigation in India should be traced back to the year 1774, the year of establishment of Asiatic Society of Bengal by William Jones. The scope of the society as defined by the founder was to study the nature and man. Since then, the British administrators, missionaries, travelers, and a few other anthropologically oriented individuals collected data on tribal and rural groups and wrote about their life and culture in the Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1784, Indian Antiquary, 1872, and later in the Journal of Bihar and Odisha Research Society, 1950, and Man in India, 1921. Along with other historical and geographical information, they also collected ethnographic data and published a series of district gazetters, handbooks on tribes and caste, and then a number of monographs, especially on the tribes of Assam. विद्यार्थी 1972-1980 इस बात के पक्षधर हैं कि भारत में मानव विज्ञान संबंधी शोध कार्य का प्रारंभ 1784 अर्थात विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के वर्ष से माना जाना चाहिए। इस संस्था के संस्थापक के शब्दों में इसका उद्देश्य प्रकृति और मानव का अध्ययन करना था। तब से अंग्रेज प्रशासकों, मिशनरियों और मानव विज्ञानोन्मुख कुछ व्यक्तियों ने जनजाति एवं ग्रामीण मानव समूहों के बारे में तथ्य एकत्रित किए और उनके जीवन तथा संस्कृति के संबंध में जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784, इंडियन एंटीक्वेरी 1872 एवं तत्पश्चात जर्नल ऑफ बिहार एंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी 1915 एंड मैन ऑफ इंडिया 1921 में लेख और निबंध आदि लिखे और प्रकाशित किए। अन्य ऐतिहासिक एवं भौगोलिक सूचनाओं के साथ उन्होंने मानव जाति विज्ञान एथनोलॉजी संबंधी सामग्री भी एकत्र की और जनजातियों एवं विभिन्न जातियों के बारे में भी जिलेवार गैजेटर एवं पुस्तक मालाएं हैंडबुक्स प्रकाशित की। बाद में असम की जनजातियों पर भी अनेक निबंध लिखे और प्रकाशित किए गए। गोपाल सरन 1973, Saran and Sinha 1976 does not agree that the beginning of Indian anthropology can be traced back to 1774 when the Asiatic Society of Bengal came into being. It is true that the Asiatic Society was responsible for the publication of materials concerned with antiquarian and anthropological interest. In our view, the origin of anthropology in India goes back to the days of British colonial administration in the latter half of the 19th century. The British administrators gradually realized that a good acquaintance, or we can say a good acquaintances with the natives and their culture was a basic prerequisite for governing them properly without falling foul of their customs and thus causing avoidable irritations. Therefore, the administrative needs of the British rulers forced them to use official machinery to gather information about the social institutions, economic conditions, and religious beliefs and practices of the native Indians who could be grouped easily into tribes and caste. 1976.
Saran 1983 further supplements his contention by pointing out that Abe Dubois, Abe, A-B-B-E, Dubois, D-U-B-O-I, Hindu Manners. Abe Dubois' Hindu Manners, Customs and Ceremonies was first published in 1816 in London, while J. Campbell published an account of the ethnography of India in 1856, and R.G. Latham's book of the same name appeared in 1859. But these were only stray attempts. The generally recognized anthropological works in India were written by the anthropologically oriented British administrators like Blunt, Crook, Dalton, Grierson, Ebaston, Mills, Nesfield, O'Malley, Risley, Russell, Sennett, Thurston, and the administrator turned academician Hutton, Hutton, in the latter half of the 19th century. Risley, who published his accounts of tribes and castes of Bengal in 1891, became famous as head of census operation and later on created a place for himself in Indian anthropology with his most celebrated book, The People of India. गोपाल शरण 1973, शरण और सिन्हा 1976 इस बात से सहमत नहीं है कि भारतीय मानव विज्ञान का उद्भव 1784 से अर्थात एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के वर्ष से माना जाना चाहिए। उनके अनुसार यह सही है कि एशियाटिक सोसाइटी को पुरातत्व एवं मानव विज्ञान विषयक सामग्री के प्रकाशन का श्रेय प्राप्त है, किंतु हमारी दृष्टि में मानव विज्ञान का उद्भव 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंग्रेजों के औपनिवेशिक शासन के दिनों में हुआ था। अंग्रेज प्रशासकों ने उत्तरोत्तर यह महसूस किया कि मूल निवासियों पर सफलतापूर्वक शासन करने के लिए उनके और उनकी संस्कृति के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि इस जानकारी के अभाव में प्रशासकों द्वारा अनजाने में ही उनके रीति रिवाजों का उल्लंघन हो सकता है और उससे प्रशासन को उनमें फैलने वाले क्षोभ और उत्तेजना की स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार प्रशासकीय आवश्यकताओं ने अंग्रेज शासकों को इस बात के लिए विवश कर दिया कि वे सरकारी तंत्र द्वारा मूल निवासियों की सामाजिक संस्थाओं, आर्थिक स्थितियों, धार्मिक विश्वासों एवं कार्यकलाप संबंधी सूचनाएं एकत्र करें, जिससे मूल निवासियों को आसानी से आदिवासियों एवं अन्य अनेक जातियों में वर्गीकृत किया जा सके। वही 1976 अपने इस दृष्टिकोण की पुष्टि करने के लिए शरण 1983 इस तथ्य की ओर संकेत करते हैं कि एव डुबॉय कृत हिंदू मैनर्स, कस्टम्स एंड सेरेमोनीज सबसे पहले लंदन में 1816 में प्रकाशित हुई थी, जबकि जे कैंपबेल की पुस्तक एथनोग्राफी ऑफ इंडिया 1856 में तथा इसी नाम की आर.जी. लैथम की पुस्तक 1859 में प्रकाशित हुई थी। ये केवल छुटपुट प्रयास थे। मानव विज्ञान संबंधी आमतौर से मान्यता प्राप्त भारतीय ग्रंथ मानव विज्ञान में अभिरुचि रखने वाले अंग्रेज प्रशासकों द्वारा लिखे गए, जिनमें ब्लंट, क्रूक, डाल्टन, ग्रियर्सन, इब्बेस्टन, मिल्स, नेसफील्ड, ओमेले, रिजले, रसेल, सेनार्ट, थर्स्टन, हट्टन आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इनमें हट्टन पहले प्रशासक थे, बाद में इस विषय के विद्वान हुए। इन लोगों ने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अनेक पुस्तकें लिखी और प्रकाशित की। रिजले ने बंगाल की जनजातियों और जातियों पर अपनी पुस्तक 1891 में प्रकाशित की। वह भारत में जनगणना कार्य के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में प्रसिद्ध हुए तथा बाद में अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ द पीपल ऑफ इंडिया की रचना करके उन्होंने भारतीय मानव विज्ञान के क्षेत्र में
अपना महत्वपूर्ण स्थान सुरक्षित किया। अब इसके आगे की बात हम अगले अध्याय में करेंगे। धन्यवाद।